Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have started reading with our chapter number 11 from the book First Flight. The name of the chapter is The Proposal, okay, and as we have discussed earlier that this is a play or drama, okay, and in the previous video we have read about the main characters, the characters of this play, and in the story till now we have read that Chubuko, he is having a daughter. The name of the daughter is Natalia, and his neighbor Lomo, he is there in Chubuko's house with a marriage proposal, okay. He wanted to marry with Natalia, okay, and Chubuko is very much happy. He is very glad with this proposal because Lomo also belongs from a very wealthy family, very rich family, okay. So जो Chubuko है वो यही चाहता था कि जो उसकी daughter है उसकी जो marriage है वो बहुत अच्छी wealthy family में, rich family में हो. That's why he is very much happy with this proposal, okay. And now he went to call his daughter, and Lomo is there alone in the drawing room of Chubuko, and he is waiting for Natalia and Chubuko. Clear? So that much we have read in the previous video, and we will continue the playing in this video. So let's begin. Natalia. So Chubuko has gone to call his daughter Natalia, and Lomo was waiting there in the drawing room. Just then Natalia entered in the drawing room, okay, and Natalia is saying, well, there, it's you. And Papa said, go, there is a merchant, come for his goods. How do you do, Ivan Vasilievich, okay. So now Natalia is there in her drawing room, और जैसे वो drawing room में आती है, she found Lomo standing there, okay. So जैसे वो Lomo को देखती है, she is saying, well, there, it's you. वो कहती है कि okay, it's you who is there in our drawing room. And Papa said, go, there is a merchant, come for his goods. So she is saying that my father, who is her father, Chubuko. So Chubuko जो थे वो नतालिया को बुलाने के लिए गए थे. So now Natalia is saying that when Papa came to me, he said that there is a merchant. Merchant means a trader. So he said there is a merchant who came for his goods. Goods means something, so we can say stuff, okay. So इसने चुबुको ने जाकर अपनी डॉटर को कहा that in the drawing room there is a merchant for some goods or some stuff, okay. How do you do, Ivan Vasilievich? और जब नतालिया देखती है और वो जानती है ये लोमो को, बिकॉज ये नेबर्स हैं आपस में, सो ये बहुत अच्छे से जानती है. सो नाउ शी इज आस्किंग दैट हाउ डू यू डू, इवान वैसिलेविच. लोमो, how do you do honor Natalia Stepanova? So now Lomo is asking that how do you do honor Natalia Stepanova, right? So they both are full of respect for each other. Natalia, you must excuse my apron and negligee. We are shelling peas for drying, okay. अब जो नतालिया जब आई है ड्राइंग रूम में, सो उसने बिल्कुल इनफॉर्मल ड्रेसअप हो रखी है, वो बिल्कुल इनफॉर्मल क्लोथ्स उसने पहने हुए हैं. सो शी इज सेइंग दैट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई एप्रन. व्हाट इज एप्रन? हियर इन द पिक्चर वी कैन सी. सो उसने इस तरह का एक एप्रन पहना हुआ था, एंड शी वॉज वेयरिंग अ काइंड ऑफ नेग्लिजी. व्हाट इज नेग्लिजी? नेग्लिजी इज अ इनफॉर्मल अटायर, राइट. सो जो बहुत ही इनफॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, जो बहुत ही फ्लोवी होती हैं. सो हियर इन द पिक्चर वी कैन सी इस तरह के जो अटायर्स होते हैं, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती हैं. सो इस तरह की ड्रेस जो थी शी वॉज वेयरिंग, एंड ओवर दिस ड्रेस शी वॉज हैविंग वन एप्रन, राइट. सो शी इज सेइंग दैट प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इनफॉर्मल लुक, okay. We are shelling peas for drying. Next she is explaining the reason that why she is in her informal clothes and why she is wearing an apron over his clothes. So she is saying that we are shelling peas. What is shelling? Shelling means to remove the shell, okay. So she is saying that we are doing some work. We are shelling peas for drying, okay. So वो peas को you know उसका जो shell होता है, outer shell, उसको हटा रहे थे और ताकि वो उन सबको you know store कर पाए, उनको dry कर पाए. इस काम में she was busy. That's why she was wearing very informal clothes along with that apron, okay. So she is saying that please excuse me for my informal attire, for my informal look, okay. Why haven't you been here for such a long time? Next she is asking to Lomo that why haven't you been here for such a long time? So she is having the same question जो कि चुबुको ने भी किया था. चुबुको ने भी ये कहा था कि तुम अपने नेबर्स को इतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करोगे, सो यू विल फॉरगेट अबाउट योर नेबर्स, राइट. सो सेम थिंग्स जो है वो नतालिया बोल रही है, वो बोल रही है कि तुम इतने दिनों बाद क्यों आए हो, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, ओके. सिट डाउन. नेक्स्ट शी इज आस्किंग हिम टू टेक अ सीट.
दे सीट देमसेल्व्स, इसके बाद वो दोनों ही नतालिया एंड लोमो दे बोथ टुक अ सीट. Want to have some lunch? Now she is offering him some lunch, some food. So she is saying that want to have some lunch. Lomo, no thank you, I have had some already. So Lomo is saying that no, I don't want any lunch, thank you so much because I have had some lunch already. Okay. Natalia then smoked. So पहले नतालिया ने उसको लंच ऑफर किया, but when Lomo said that he had already taken his lunch, so now Natalia is offering some smoke. Okay, so she is saying that okay then smoke, here are the matches. Okay. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. Okay, now वो बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल सी कैजुअल सी टॉक्स में बिजी हो गए हैं. So Natalia is saying that today weather is splendid. What is splendid? Splendid means excellent, right? It is very pleasant. So Natalia is saying that today the weather is very much good. It is very good. It is very excellent or pleasant. But yesterday it was so wet. But yesterday weather was not good. It was wet. Okay, what is wet weather? Maybe it was raining or maybe it was full of humidity, right? So she is saying that yesterday weather was not good, it was wet, maybe it was raining or maybe it was full of humid. Okay, so she is saying today weather is good, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day, right? So she is saying that because of yesterday's weather the workmen were, they were totally unable to do any work, any kind of work. How much hay have you staked? Next she is asking to Lomo that how much hay have you staked? What is hay? Hay is a dry grass. Okay, here in the picture we can see this is the stake of a hay. What is a stake? Stake means put or arrange in a stake, right? So this is the stake of hay. Hay means dried grass. Okay, so now she is asking to Lomo that how much hay have you staked in your fields, right? So Lomo is also a landowner and Chubuko's family is also from a landowner family, राइट. सो उन दोनों का एक ही काम है, दोनों लैंड ओनर्स हैं, दोनों के पास काफ़ी लैंड है और उस लैंड पे वहाँ पे फार्मिंग भी होती है, राइट. हर तरह की एक्टिविटीज़ अपने लैंड्स पे करवाते हैं. सो नतालिया इज आस्किंग कि तुम्हारे लैंड पे भी तुमने जो हे का स्टेक लगाया है वो कितना है, हाउ मच हे तुमने कलेक्ट कर ली है. ओके. Just a thing, I felt greedy and had a whole field cut. Next she is saying that just a thing, I felt greedy. वो कह रही है कि तुम बस सोच के देखो, just imagine कि मैं कितनी ज़्यादा greedy हो गई थी. I was having so much of greed that I had a whole field cut, right? So she is saying that because of my greed मैंने क्या किया, मैंने entire field को cut करवा लिया. Okay. And now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. Okay, so she is saying that because of my greed मैंने entire field cut तो करवा लिया, that's why जो मेरा hay का stake है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी hay मैंने जो है वो collect कर ली है, but अब मुझे ना डर लग रहा है. why she was afraid? so उसको डर इसलिए लग रहा है because उसके माइंड में ये भी चल रहा है कि उसने जो hay इतना ज़्यादा stake कर लिया है, अगर ये hay सही टाइम पे यूज़ नहीं किया गया, अगर ये है ऐसे ही रखा रहा तो क्या होगा, इट मे रॉट, राइट. वॉट इज रोट? रोट मीन्स ये डिके हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया और बिकॉज ऑफ सम फंगस. ओके, सो शी इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ माई ग्रीड मैंने एंटायर फील्ड कट तो करवा लिया, बहुत सारी है मैंने एक जगह स्टेक करवा ली, बट नाउ आई एम हैविंग दिस फियर दैट बिकॉज ऑफ द वेदर, राइट, अगर ऐसे ही वेदर वेट रहा, बारिश होती रही, और बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी जो ये है इट मे रॉट, इट मे डिके, इट मे डैमेज, इट may ruin. Okay, I ought to have waited a bit. So she is saying that मुझे पूरा फील्ड एक साथ कट नहीं करवाना चाहिए था. I should have waited, right. वो कह रही है कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, मुझे थोड़ा थोड़ा हे कट करवाना चाहिए था, मुझे एंटायर फील्ड एक साथ कट नहीं करवाना चाहिए था. क्लियर. बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस. ओके, सो नतालिया इस तरह की बातें कर रही थी, बिल्कुल कैजुअल, राइट, खाने के बारे में, वेदर के बारे में, लेकिन नाउ उसने ना उसको ऑब्जर्व किया, किसे, वहाँ पे जो लोमो बैठा हुआ है उसने लोमो को ऑब्जर्व किया, उसने लोमो की ड्रेस को ऑब्जर्व किया कि वो कितना फॉर्मल ड्रेसअप होके आया है, राइट. सो जैसे उसने उसकी ड्रेसेस को, उसके क्लोथ्स को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, सो शी इज आस्किंग दैट व्हाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, राइट. सो शी इज ऑल्सो हैविंग द सेम क्वेश्चन एज ऑफ चिबुको ने भी पूछा था दैट व्हाई यू आर इन सच अ फॉर्मल ड्रेस हियर. सो सेम थिंग इज देयर इन नतालिया's mind. She is also asking to Lomo that why you are in your evening dress. Well, I never,
पर आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट नेक्स्ट। वो अपने आप गैस कर रही है कि क्या रीज़न हो सकता है कि इतना फॉर्मल ड्रेसअप होके आया है, वो लॉन्ग जैकेट पहन के आया है, ड्रेस जैकेट पहन के आया है, इतना फॉर्मल ड्रेसअप होके आया है। सो शी इज़ हैविंग सम गैस, वो कुछ गैस कर रही है और पूछ रही है दैट आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट। ओके, सो वॉट इज़ बॉल। बॉल एक तरह का डांस होता है। हियर इन द पिक्चर वी कैन सी दिस इज बॉल डांस। ओके, सो ये रशियन कल्चर में बहुत कॉमन डांस है और ये जो डांस होता है बॉल डांस, इसमें यू कैन सी जो जेंट्स होते हैं वो इसी तरह की ड्रेस जैकेट पहनते हैं, राइट, बिल्कुल फॉर्मल वो ड्रेसअप होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो इस तरह के लॉन्ग गाउन्स पहनती हैं। क्लियर। सो दो ये बिल्कुल कपल डांस की तरह इसको किया जाता है और फीमेल्स और मेल दोनों ही बहुत ज़्यादा फॉर्मली ड्रेसअप होते हैं। ओके, सो जब उसने देखा, नतालिया ने नोटिस किया दैट लोमोव इज सिटिंग देयर विथ अ वेरी फॉर्मल ड्रेस एंड ही इज वेयरिंग अ जैकेट, a long jacket, right? So she is saying that are you going to the ball dance? Okay, though I must say you look better, tell me why are you got up like that, right? So उसने अपना एक guess बताया that are you going to some ball dance or what. Next she said that I must say that you look better, you are looking good in this dress, in this jacket, but tell me why are you wearing this jacket, why are you in your evening dress, please tell me why are you got up like that. Okay, so she is asking that why he is wearing that formal dress. Okay, Lomo excited, so now Lomo is very much excited because अब उसको वो पॉइंट मिल गया है, अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है जहाँ वो अपना आने का पर्पस बताएगा, जहाँ वो क्यों आया है, अपना मैरिज प्रपोजल जो वो लेके आया है वो अब वो नतालिया को बताने वाला है, राइट. सो ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड एंड इन दैट एक्साइटमेंट ही सेड यू सी ऑनर्ड इज नतालिया स्टीपेनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट. ओके, सो नाउ ही इज सेइंग विथ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, राइट. वो क्या बोल रहा है, he is saying that you see honor Natalia Stepanova, the fact is, so he is saying that the fact, the reason that why I am wearing this evening dress here, so the fact is that I have made up my mind, that I have decided something in my mind that I want to ask you, right, I want to ask you to hear me out. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, इसीलिए मैं इस तरह से फॉर्मल ड्रेसअप होके यहाँ पे आया हूँ, राइट. अब वो क्या बात थी वो ये बताने वाला है. Of course you will be surprised and perhaps even angry, but next he is saying that after hearing this thing, right, जो मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ, जो फैक्ट मैं यहाँ पे तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, so maybe that after hearing that you will be surprised or maybe you will be a little bit of angry, right, but लेकिन वो अपनी बात कंटिन्यू करता है. but then aside means as I have told you earlier कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं aside, इसका मतलब ये होता है कि नाउ अब जो लोमो बात कह रहा है वो जो डायलॉग है उसका, वो डायलॉग नतालिया नहीं सुन रही है, राइट. नतालिया इज नॉट एबल टू हियर व्हाट लोमो इज सेइंग हियर. ओके, सो वो बिल्कुल असाइड होके क्या कहता है, इट्स ऑफुली कोल्ड, राइट. सो वी हैव रेड अर्लियर कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. सो अब जब वो अपनी बात कह रहा था, वो अपना प्रपोजल लेके आया है, उसको बोल रहा था, बोलते बोलते वन मोर टाइम शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. ओके, नतालिया व्हाट्स द मैटर, पॉज. वेल, सो नतालिया के भी मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, वो भी जानना चाहती है कि क्या रीज़न है, ये इतना फॉर्मली ड्रेसअप हो के आया है एंड वो कह भी रहा है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है. सो नाउ शी इज़ आस्किंग दैट व्हाट इज़ द मैटर. आफ्टर दैट शी पॉजेज फॉर सम टाइम, देन शी आस्क्ड वेल प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द मैटर. Lomo, I shall try to be brief. So Lomo is saying that I want to say something, और जो बात मैं कहना चाहता हूँ I want to be say that thing in brief. What is brief? Brief means short. So Lomo कहता है कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. You must know, honored Natalia Stepanova, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. Okay, so Lomo कह तो रहा है कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो इतना नर्वस है, इतना एक्साइटेड है कि वो बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल पॉइंट पे अपनी बात नहीं कह पा रहा है. वो बहुत ज़्यादा पहले बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है, राइट. सो वो क्या कह रहा है, यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टीपेनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट had the privilege of knowing your family. So he is saying that you know very much, very clearly that since my childhood I know about you, about your family, right. What is privilege? Privilege is a special right. So he is saying that I have the special right to know you and your family since my childhood.
My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. Next he is saying that my late aunt. What is late? Late means जिनकी डेथ हो चुकी होती है, the persons who are there no more, जो अब नहीं रहते हैं इस वर्ड में, उनके आगे हम लेट लगा देते हैं. ओके, सो ही इज सेइंग दैट माय लेट आंट, वो आंट जिनकी अब डेथ हो चुकी है, एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम, एज यू नो, आई इनहेरिटेड माय लैंड. व्हाट इज इनहेरिट? इनहेरिट मीन्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, राइट, जिन्हें हम अपने पेरेंट्स से और अपने एंसेस्टर्स से हम रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड. तो जो लैंड ऑनर है ये लोमो, सो जिस लैंड का ऑनर है वो लैंड इसको कहाँ से मिली थी? इसको अपनी आंट से मिली थी, राइट. सो ये अपनी उस आंट को रेफर करते हुए कह रहा है कि जो मेरी वो लेट आंट है जिनकी अब डेथ हो चुकी है, और जो उनके हस्बैंड है जिनसे मुझे अपनी ये लैंड मिली है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. वो आंट और उनके जो हस्बैंड थे, दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? वन मोर थिंग अबाउट नतालिया, कि उसकी जो मदर है उनकी भी डेथ हो चुकी है, राइट. सो शी इज़ नॉट हैविंग हर मदर. सो वो कह रहा है लोमो कि तुम्हारी जो फादर और तुम्हारी जो मदर है, उनके लिए जो मेरी आंट है उनके मन में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी. ओके, द लोमो and the Chubukos have always had the most friendly. Next he is saying जो हमारी फैमिली है the Lomos, और जो तुम्हारी फैमिली है Chubukos, हम दोनों की जो फैमिलीज है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रही हैं. उनके जो आपस में रिलेशंस है वो काफ़ी फ्रेंडली रहे हैं. ओके, and I might almost say the most affectionate regard for each other. Next he is saying that both the families are not only friendly but they are having affections for each other, right. affections and regard, right. so उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए लव है, अफेक्शन है, रेस्पेक्ट है, रिगार्ड्स है, राइट. and as you know my land is near neighbor of yours. next he is saying कि तुम्हें पता है कि we both are neighbors, और जो हमारी लैंड्स हैं वो भी नेबर्स है. so he is saying कि जो मेरी लैंड है वो तुम्हारी लैंड के बिल्कुल पास में ही है. ओके, यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्च वुड्स, राइट. नेक्स्ट ही इज सेइंग कि तुम्हें अब अच्छे से पता होगा कि जो मेरी लैंड है और उसके लैंड का लास्ट पॉइंट है ऑक्सन मीडोज, राइट. सो व्हाट इज मीडोज? मीडोज इन द पिक्चर वी कैन सी, ये जो ग्रास लैंड होता है, राइट, जो एक लैंड होता है, वी कैन से लैंडस्केप होता है जो फुल ऑफ ग्रास होता है, इट इज कॉल्ड एज मीडोज, राइट. और इस मीडोज का नाम था ऑक्सन मीडोज. सो लोमो कह रहा है कि जो मेरे ऑक्सन मीडोज हैं वो बिल्कुल टच करते हैं तुम्हारी लैंड को, उस पार्ट को जहाँ पे बर्च वुड्स है. एंड नाउ व्हाट इज बर्च वुड? सो हियर इन द पिक्चर वी कैन सी बर्च इज अ काइंड ऑफ ट्री, राइट. यहाँ पे जो हमें ट्री दिख रहे हैं जो बहुत ही टॉल होते हैं, इन ट्री को कहते हैं बर्च. और बर्च वुड्स यानी जो पूरा लैंड था, दैट एंटायर लैंड वाज कवर्ड विद दिस काइंड ऑफ ट्रीज, राइट. सो वहाँ पे बर्च के जो ट्री लगे हुए थे, इसीलिए उस लैंड को कहा जाता था बर्च वुड. ओके, सो लोमो कह रहा है कि जो तुम्हारे बर्च वुड है उसको बिल्कुल टच करते हुआ मेरा लैंड का पार्ट है. कौन सा पार्ट? ऑक्सन मेडोज. क्लियर? Natalia, excuse my interrupting you. You say my oxen meadows, but are they yours? अब इतना सुनते ही यानी कि जो लोमो है वो तो अपनी बात तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है, वो यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं कि वो एक्चुअल में क्यों आया है, वो मैरिज प्रपोजल लेके आया है नतालिया के लिए. वो अभी तक सिर्फ बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है, अपनी पॉइंट तक आने के लिए अपनी बात को प्रिपेयर कर रहा है. बट तभी नतालिया इतना सुनते ही बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है, यू से माई ऑक्सन meadows, बट आर दे yours? So Natalia is saying that, excuse me, what did you say right now? You said my oxen meadows, but are they yours? Lomo, yes, mine. So Lomo is saying that yes, oxen meadows are mine only. Natalia, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. So Natalia को इस तरह बीच में क्यों बोलना पड़ा, उसने बीच में इंटरप्ट क्यों करा? Why? Because she is saying that what are you talking about? तुम क्या बात कर रहे हो? Because oxen meadows are ours, not yours. So Natalia is saying that oxen meadows जो है they belong to her family, not to Lomo's family. Clear?
Lomo, no, mine, honored Natalia Stepanova. So Lomo is, very shocked कि नतालिया क्या बात कर रही है. So Lomo is denying this fact completely and he is saying that no, they are mine, honored Natalia Stepanova. Natalia, well, I never knew that before. So Natalia is saying that okay, ये एक ऐसी बात है जो मुझे इससे पहले नहीं पता थी, बिकॉज मुझे तो यही बात पता है कि वो जो ऑक्सन मेडोज है वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी लैंड का पार्ट है. हाउ डू यू मेक दैट आउट? सो नतालिया इज सेइंग कि तुमने ये बात कैसे तुमने इस बात को कैसे मेकअप कर लिया, तुमने ये बात कैसे बोल दी कि वो ऑक्सन मेडोज तुम्हारे हैं. Lomo, how? I am speaking of those oxen meadows which are waste in between your birchwoods and the burnt marsh. तो Lomo वो कह रहा है कि क्या मतलब मैंने ये बात मेकअप करी है, मैं ये बात तुम्हें बना के बोल रहा हूँ, इस बात का क्या मतलब है? I am speaking of those oxen meadows, right? So Lomo को लग रहा है कि मे बी जो नतालिया है वो कुछ कंफ्यूज हो रही है, तो उसको कुछ कंफ्यूजन है कि मैं कौन से मेडोज की बात कर रहा हूँ. सो वो इस चीज़ को क्लियर यहाँ कर रहा है एंड ही सेइंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट दोज ऑक्सन मेडोज which are waste in between your birchwood and the burnt marsh, right? So वो कह रहा है कि अरे मैं उन meadows की बात कर रहा हूँ, उन oxen meadows की बात कर रहा हूँ जो कि waste है. What is waste? Waste means fix in position between your birchwoods and the burnt marsh, right? So waste here in the picture we can see ये tree को दो parts में divide कर दिया गया है with the help of this wedge, right? इसे हम कहते हैं wedge. So जिस तरह से इस wedge ने tree को two parts में divide कर दिया है, वैसे ही जो ऑक्सन मेडोज थे वो बिल्कुल इन बिटवीन थे. किसके? वन साइड देयर वाज बर्चवुड एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज बर्न्ट मार्श, राइट? सो बिल्कुल स्पेसिफिकली अब लोमो बता रहा है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट दोज ऑक्सन मेडोज जो बिल्कुल फिक्स पोजीशन में थे. किसके बीच में? between birchwoods and on the other side there was burnt marsh. okay, नतालिया, यस दे आर आर्स. तो नतालिया कह रही है हाँ मैं भी उन्हीं मेडोज की बात कर रही हूँ एंड दोज मेडोज आर आर्स. Lomo, no, you are mistaken, honored Natalia Stepanova. They are mine. So Lomo is saying that no, तुम्हें कुछ तुमसे कुछ गलती हुई है. You are mistaken because those oxen meadows are mine. Natalia, just think, Ivan Vasilyevich, how long have they been yours? So Natalia को अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, थोड़ी सी वो अपसेट हो रही है और वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कह रही है कि जस्ट थिंक इवान वैसिलियोविच, वो मेडोज तुम्हारे कब से हो गए, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से हमारे ही हैं. तुम्हें ये बात कब से लगने लग गई कि वो मेडोज तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करते हैं. लोमो, How long? As long as I can remember. So Lomo is saying that क्या मतलब कब से लग रहे हैं? जब से मुझे याद है वो मेडोज तो हमारे ही हैं. They are the part of our land, our property. Natalia, really? You won't get me to believe that. So Natalia is now full of anger and she is saying really? अगर ऐसा है so तुम मुझे इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं करवा पाओगे because I know that those meadows are ours. Lomo, but you can see from the documents, honored Natalia Stepanova, oxen meadows, it is true. So Lomo कह रहा है कि अगर तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं है, अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं है, so I can show you the documents. क्योंकि वो कह रहा है कि I have all the papers, so I can show you the documents. अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बात पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, so I can show you the documents. Honored Natalia Stepanova, Oxen meadows, it is true, were once the subject of dispute. Now वो पूरी बात को अच्छे से explain कर रहा है. He is explaining everything and he is saying that once ये जो meadows हैं, they were the subject of dispute. Dispute means some kind of argument. So वो कह रहा है कि हाँ पहले इस land को लेके dispute था, कुछ arguments थे. But now everybody knows that they are mine. But अब इस बारे में कोई argument नहीं है, कोई dispute नहीं है और अब ये बात बिल्कुल clear है और ये बात सबको पता है. Everyone knows कि वो जो मेडोज हैं दे बिलोंग्स टू मी, वो मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे लैंड का पार्ट है. There is nothing to argue about. Next he is saying कि why we are arguing, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स तक में ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो मेडोज तो मेरे ही हैं. सो वाई वी आर आर्ग्यूइंग इस बारे में कि वो मेडोज किसके हैं. यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर. ओके, अब वो बिल्कुल डिटेल में एवरीथिंग ही वॉज एक्सप्लेनिंग हियर. सो ही सेइंग दैट जो उसकी आंट थी, जो उसकी लेट आंट थी, जिन आंट से
इसको ये इनहेरिट इसने किया था ये लैंड। सो ही सेइंग कि जो उसकी आंट की ग्रैंड मदर थी, राइट। सो कितनी जनरेशंस पहले की ये बात है, कब से ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली आ रही है। सो वो कह रहा है कि जो उसके आंट की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये जो मेडोज थे ये दिए थे परपेचुइटी में। व्हाट इज परपेचुइटी? परपेचुइटी मीन्स विथ नो फिक्स डेट, राइट, विथ नो फिक्स डेट। सो उसकी जो एंड की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये मीडोज यूज करने के लिए दिए थे पीजेंट्स को। पीजेंट्स मीन्स जो एग्रीकल्चर के लेबर्स होते हैं उन्हें। और वो लेबर्स किसके थे? इसके नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर के। क्लियर? यानी कि ये बहुत जनरेशन्स पहले का डिस्प्यूट है, ये आर्ग्यूमेंट बहुत जनरेशन्स पहले से चला आ रहा है। और आर्ग्यूमेंट क्या था कि ये जो मेडोज थे ये लोमो की आंट के ग्रैंड मदर के थे, बट इन मेडोज का यूज़ करने के लिए वो ग्रैंड मदर ने ये मेडोज दे दिए थे नतालिया के फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को। और कैसे? परपेचुइटी में, यानी कि बिना कुछ बोले कि कौन सी डेट तक के लिए मैं दे रही हूँ, कितने टाइम के लिए मैं दे रही हूँ, ये क्लियर नहीं किया था, बट फ्री यूज़ करने के लिए दे दिए था। वो जो लैंड था वो बिल्कुल फ्री यूज करने के लिए उन पीजेंट्स को दे दिया था। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। और फ्री यूज तो वो कर रहे थे, बट इन रिटर्न उन पीजेंट्स को क्या करना था? दे हैव टू मेक द ब्रिक्स फॉर हर। ओके, सो ये डील हुई थी कि वो उन मेडोज का यूज कर सकते हैं, फ्री यूज कर सकते हैं, बट इन रिटर्न दे हैव टू मेक द ब्रिक्स फॉर हर। ओके, सो दिस वॉज द डील। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 ईयर्स। ओके, सो जब ये डील हुई थी तब ये क्लियर नहीं था कि कब तक वो यूज कर सकते हैं। सो लोमो कह रहा है कि उन पीजेंट्स ने इनका यूज किया था 40 ईयर्स तक, इन मेडोज का यूज किया था, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन। और इसीलिए धीरे धीरे उनको हैबिट हो गई थी कि वो उन मेडोज को अपना मानने लग गए थे, राइट। दे वर कंसिडरिंग दोज मेडोज एज ऑफ देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। और जब ये सब हुआ तब Natalia, so Natalia one more time she is interrupting, no it isn't at all like that, both grandfather and great grandfather reckon that their land extended to burn marsh। so Natalia बीच में बोल रही है, she is saying कि no ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है, because जो उसके grandfather थे और जो उसके great grandfather थे वो हमेशा यही बात reckon करते थे। reckon means किसी बात को बिल्कुल calculations के बेस पे, बिल्कुल facts के बेस पे किसी बात एस्टैब्लिश कर देना, राइट। सो वो बार बार यही बात रिपीट करते थे और उन्हें बात एस्टैब्लिश कर दी थी विथ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस कि उनकी जो लैंड है दैट लैंड इज एक्सटेंडेड टू बर्न टू मार्श विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज वर आर। सो नतालिया से कि इस बात का ये मतलब है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारी लैंड का पार्ट है, वो हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट है। ओके, I don't see what there is to argue about. It's simply silly. So Natalia is saying that why are we arguing about? Because this is very clear कि वो जो meadows हैं they are ours. So why are we arguing? It is totally silly. It is totally nonsense. It is totally childish that we are talking about some things that are so much clear already. Okay. लोमो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टीपेनोवा। सो लोमो के पास भी अपना पॉइंट है, ही इज हैविंग हिज ओन पॉइंट एंड ही इज सेइंग दैट नो इट इज नॉट लाइक दैट एंड आई कैन शो यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द पेपर्स। नतालिया नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। सो नतालिया जो है वो बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है, शी इज़ नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन ओनली एंड शी इज सेइंग दैट नो इफ़ यू आर जोकिंग और यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। What a surprise! We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours. So now here she is saying that ये किस तरह का सरप्राइज तुमने हमें दिया है, because almost 300 years से हमें पता है, हमारी फैमिली को पता है, बहुत जनरेशन से ये बात हमारी फैमिली को पता है कि वो जो मेडोज हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड का पार्ट है, और नाउ सडनली तुम एक दिन आते हो, तुम हमसे ये कह रहे हो कि वो हमारे नहीं है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ सरप्राइज ऑफ this, what kind of joke is this? Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. So वो जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है नतालिया को, she is saying that I can believe my ears कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम कौन सी स्टोरी मुझे सुना रहे हो, मैं इन सब बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती, बिकॉज बहुत जनरेशन से बात बिल्कुल क्लियर है हमारी फैमिली में कि वो मेडोज हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी लैंड का पार्ट है। These meadows aren't worth much to me. They only come to 5
daciatins and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. Now Natalia is saying कि ऐसा नहीं है कि वो जो ऑक्सन मीडोज हैं वो कोई बहुत बड़ी लैंड है, राइट? ऐसा नहीं है कि उसका जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो शी इज सेइंग कि वो जो मेडोज हैं उनकी जो वर्थ है, उनका जो प्राइस है लैंड का, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, ओनली 5 डेसिएटिन्स हैं. व्हाट इज डेसिएटिन्स? डेसिएटिन्स इज अ लैंड मेजरमेंट ऑफ रशिया, राइट? सो रशिया में जो लैंड को मेजर करते हैं, सो मेजरमेंट की एक यूनिट होती है. सो वो जो मेडोज हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लैंड का पार्ट है, वो काफ़ी छोटा सा पार्ट है, ओनली 5 डेसिएटिन्स का वो पार्ट है. और उसकी जो प्राइस है, जो वर्थ है, वो कितना है, परहैप्स 300 रूबल्स है. रूबल्स इज द करेंसी ऑफ रशिया, राइट? सो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वर्थ का लैंड है. बट नतालिया क्या कह रही है, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि वो मेडोज की उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है हमारी फैमिली के लिए, या वो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे लिए. इट्स नॉट लाइक दैट. बट मैं कभी भी अनफेयरनेस स्टैंड नहीं कर सकती, मैं कभी भी इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकती. से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. स्टैंड मीन्स टू टॉलरेट समथिंग. सो शी इज सेइंग कि मैं कभी भी अनफेयरनेस और इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकती. सो बात ये है कि वो मेडोज हमारे हैं. ओके, लोमो हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू. अब जो लोमो है उससे भी गुस्सा आ रहा है, राइट? और वो भी अपनी बात को बिल्कुल प्रूव करना चाहता है. सो ही इज सेइंग दैट हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू. इम्प्लोर यू मीन्स टू बैग. सो ही इज सेइंग दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम बैगिंग यू, हियर मी आउट. द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू. ओके, सो अभी भी इसको गुस्सा तो आ रहा है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा काइंडली बात कर रहा है, अभी भी फुल ऑफ रिस्पेक्ट वो बात कर रहा है. सो ही इज सेइंग दैट जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स थे, जो लेबर्स थे, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, राइट? सो फिर से वही बात रिपीट कर रहा है कि हुआ क्या था एक्चुअल में, क्या डिस्प्यूट है इस प्रॉपर्टी को लेके. सो वन मोर टाइम ही इज ट्राइंग टू रिपीट हिज स्टोरी, हिज साइड ऑफ स्टोरी. यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, राइट? सो अब वो वही बात रिपीट कर रहा है कि जो तुम्हारे फादर के जो पेजेंट्स थे वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बेक किया करते थे, ब्रिक्स बनाया करते थे, राइट? और इस तरह से ये स्टोरी शुरू हुई थी, इस तरह से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था. सो वन मोर टाइम वही बात बार बार रिपीट कर रहा है. नतालिया, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers or grandmothers. The meadows are ours, that's all. तो नतालिया कह रही है कि जो तुम मुझे बार बार स्टोरी सुना रहे हो, जो तुम बार बार ये रिपीट कर रहे हो अपनी स्टोरी, that is full of aunts, full of grandfathers and grandmothers, इन स्टोरीज में से मैं कुछ भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ आउट कर पा रही हूँ. आई एम अनेबल टू कंक्लूड एनीथिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी, राइट? सो कांट मेक हेड एंड टेल मतलब मैं कोई भी बात क्लियरली समझ नहीं पा रही हूँ. जो तुम्हारी स्टोरी है फुल ऑफ आंट्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, जो तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, इस बात से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई नो द वन थिंग एंड द थिंग इज दैट द मेडोज आर आर्स, दैट्स ऑल. लोमो माइन. सो लोमो कह रहा है नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दोज मेडोज आर माइन. Natalia, ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. So अब नतालिया जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, वो फुल ऑफ इरिटेशन है. सो वो कह रही है ours, वो नहीं, वो मेडोज हमारे हैं. You can go on proving it for 2 days on end. वो कह रही है कि जो तुम मुझे स्टोरी सुना रहे हो प्रूव करने के लिए, सो तुम कंटिन्यू 2 डेज तक प्रूव कर सकते हो, तुम कंटिन्यू 2 डेज तक स्टोरी सुना सकते हो, और तुम चाहे 15 ड्रेस जैकेट्स पहन सकते हो. बट फिर भी मैं तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है वो मेडोज हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, राइट? सो नाउ नतालिया जो है वो थोड़ा बहुत उसको इंसल्ट कर रही है, राइट? वो कह रही है कि तुम 2 दिन तक प्रूव करते रहो, और जो तुम्हें ड्रेस जैकेट पहन के आए हो ये बात प्रूव करने के लिए. सब नतालिया को क्या लग रहा है कि वो ड्रेस जैकेट क्यों पहन के आया है, क्योंकि उसको ये बात करनी थी, ऑक्सन मेडोज की बात करनी थी. बट एक्चुअल में लोमो वहाँ क्यों आया है? ही इज़ हेयर फॉर अ मैरिज प्रपोजल. लेकिन वो खुद अब उस प्रपोजल के बारे में पूरी तरह से भूल चुका है, राइट? उसको बिल्कुल याद ही नहीं कि उसे तो एक्चुअल में मैरिज प्रपोजल के बारे में बात करनी थी. और एक अलग ही बात पे वो इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट उन दोनों के बीच में हो गया है कि अब उसी के बारे में बात करते जा रहे हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इरिटेट हो रहे हैं, दोनों ही अपना एंगर शो कर रहे हैं. ओके,
आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर। सो फाइनली नतालिया कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी लैंड नहीं लेना चाहती, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारी है, मुझे वो नहीं चाहिए, राइट। बट एट द सेम टाइम आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रॉपर्टी, जो लैंड हमारी है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, सो देयर। बस यही बात है, राइट। यानी कि नतालिया कह रही है कि जो तुम्हारा है मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, बट जो हमारा है वो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, हमारी प्रॉपर्टी हम अपने पास रखेंगे और ये जो मेडोज हैं ये हमारे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है, बात खत्म, राइट। बट अब ये बात खत्म नहीं हुई है, बिकॉज लोमो हैज़ हिज ऑन पॉइंट्स, हिज ऑन साइड ऑफ स्टोरी एंड नतालिया इज हैविंग द अदर साइड ऑफ स्टोरी, राइट। और जो दोनों ही हैं, दोनों इस बात पे बिल्कुल फॉर्म है कि जो मेडोज हैं वो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके। सो दोनों ही इस बात पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, हॉट डिस्कशन हो रहा है, राइट। अब क्या होता है स्टोरी में, जो प्रपोजल है वो क्या आगे बढ़ पाता है, क्या प्रपोजल की बात आगे आज आ पाती है, क्या नतालिया इस बात को जान पाती है कि लोमो वहाँ आया क्यों था, एक्चुअल में वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करने आया था, राइट। सो क्या ये बात आती है नतालिया के सामने, वी विल कम टू नो व्हेन वी विल कंटिन्यू द प्ले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।